السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر کریں گے نظر۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کو 100 دن سے زائد گزر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج اب بھی غزہ پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہے۔ شہداء کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 19 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خان یونس علاقے میں اسرائیل کی فضائی مہم میں اب تیزی آ گئی ہے۔ رات بھر اور آج صبح بھی بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ فضائی حملوں سے انفراسٹرکچر بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، جبکہ مغربی کنارے کی بات کی جائے تو وہاں اسرائیلی افواج کی چھاپہ مار کارروائی سے حالات دگرگوں ہو گئے ہیں۔ ظلم و تشدد وہاں جاری ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ویسٹ بینک میں 374 افراد فلسطینی وہاں کے وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 6,000 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب اسرائیل کو زمینی جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 1000 سے زائد ٹینک اور بختربند گاڑیاں ان کی تباہ ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں فوجی مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں فوجی معذور بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجوں میں موذی امراض پھیلتے جا رہے ہیں، جس سے فوجوں کی ہمتیں بھی پست ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب تل ابیب میں بھی خود اسرائیلی شہری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر اتر آئے ہیں، جس سے جنگ بندی کے لیے دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم اپنی کرسی بچانے کے لیے جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جنگی کابینہ کے اراکین بھی اب نتن یاہو کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر ایزن کوٹ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اب ہمیں جنگ کے تعلق سے جھوٹ بولنا بند کر دینا چاہیے، اور کہا کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگی کو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہیں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ رونن بار نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے بعد استعفیٰ دیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عملے کو اس تعلق سے مطلع بھی کر دیا ہے۔ وہی جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی حکومت کے فیصلے نے ملک کو کنگال بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیل نے جنگ پر $6.6 بلین خرچ کر دیے ہیں، اور ملک کا حال یہ ہے کہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اسرائیل نے اب وزارت تعلیم کے بجٹ سے بھی کٹوتی کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے آپ جنگ کے وسیع اثرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہی رپورٹ کے مطابق 2025 تک غزہ جنگ پر $54 بلین سے زائد لاگت آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہیں غزہ جنگ کے اسرائیل کی معاشی صورتحال پر مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات نے ماہرین کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل میں موجود بین الاقوامی کاروباری ادارے بھی اور دوسری کمپنیاں بھی اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری واپس لینے پر غور کر رہی ہیں۔ وہیں تل ابیب میں خود اسرائیلی عوام وہ سڑکوں پر اتر کر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ ان کا سیدھا سا مطالبہ یہ ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ لیکن دوسری جانب حماس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی اور تمام فلسطینیوں کو جو اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، تب تک کسی بھی قسم کے مذاکرات کی طرف وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی درمیان جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر حماس نے یرغمالیوں میں سے ایک کی ویڈیو فوٹیج جاری کی، جس سے اسرائیلی حکومت پر اب مزید دباؤ بڑھنے والا ہے۔ وہی ویڈیو میں یرغمالیوں نے حکومت سے یعنی کہ اسرائیلی حکومت سے فوری طور پر جنگ بند کرنے کو کہا ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کب کی گئی تھی۔ ویڈیو میں نظر آنے والے تمام یرغمالیوں کو حماس کے جنگجوؤں نے 7 اکتوبر کو اغوا کیا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ کل معلوم ہو جائے گا۔ وہ حماس نے اسرائیلی فوج پر الزام لگایا کہ اس کے فضائی حملوں کی وجہ سے کئی یرغمالی وہ لاپتہ ہیں۔ حماس نے اس سے قبل بھی متعدد یرغمالیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار اسرائیلی فوج کو ٹھہرایا تھا۔ وہیں جس طریقے کے حالات غزہ میں ہیں، اب چین نے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے اور مسئلہ فلسطین کو ٹھوس اور جامع حل تلاش کرنے کے لیے وہ کام کرے گا۔ گزشتہ روز چین اور مصر کے وزرائے خارجہ نے بات چیت کی تھی، جس کے بعد مصر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ سامح شکری اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی نے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور جامع حل تلاش کرنے کے مقصد سے اپنے ممالک کی کوششوں میں ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब पहली जंग बंदी हुई थी तो उससे कबल भी अरब ममालिक के रहनुमा चीन पहुँचे थे, जिसके बाद एक रोज़ बाद ही जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया था। और अब भी अगर चीन मसले के हल के लिए आगे बढ़ता है तो फिर मशरिक़ वस्ता में चीन का दबदबा बढ़ता देख अमेरिका के लिए भी अब ज़रूरी हो जाएगा कि वो मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब यमन पर अमेरिका और बरतानिया के हमलों से हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने यमन के ख़िलाफ़ हमलों को अमेरिका और बरतानिया की हिमाकत करार दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि इस तरह के हमलों से वो इज़राइल का मुकाबला करना छोड़ देंगे तो ये उसकी गलती है। उन्होंने ख़बरदार किया कि बहर अहमर में अमरीकी इक़दामात से जहाज़ रानी की सनअत की सलामती को नुकसान पहुँचेगा, जबकि ये इलाक़ा अब मैदान तनाज़ुआत का गढ़ बन चुका है। वही अमेरिका के हूसी ठिकानों पर हमले के जवाब में यमन के हूसी बागियों ने बहर अहमर में एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर की तरफ एक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल दाग कर पैगाम दिया है कि वो अमरीकी हमलों से डरने वाले नहीं हैं। अमरीकी हमलों के बाद हूसियों की जानिब से बहर अहमर में अमरीका पर यह पहला हमला है। हालांकि इस हमले में कोई जानी माली नुकसान की खबरें नहीं आई हैं, ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका है कि आया अमेरिका ताज़ा तरीन हमले पर क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। वह अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनकी इंतज़ामिया ने बहर अहमर में यमन की बागी अंसारुल्लाह तहरीक यानी कि हूसियों की जो तहरीक है उनके हमलों के बारे में ईरान को ज़ाती तौर पर पैगाम भेजा था। बता दें कि गज़ा में इज़राइल के हमलों के जवाब में हूसियों ने इज़राइल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी बहरी जहाज़ पर हमला करने के अपने इरादे का ऐलान किया था और दूसरे ममालिक के जहाज़ों से अपने अमले को वापस बुलाने की दरख्वास्त की थी। हूसियों ने तब तक अपने हमले जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया है जब तक इज़राइल गज़ा पट्टी में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं कर देता। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के जश्न में पूरे मुल्क के सरकारी इदारे भी लगे हुए हैं, तो दूसरी जानिब गुजरात में ट्रक रोक कर सड़क किनारे नमाज अदा करने पर एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या गुजरात के बनासकांठा इलाके में पेश आया। बचल खान जो कि 27 साल का है, उसका जुमे को नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो सामने आया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में वो पालनपुर शहर के करीब एक मसरूफ़ सड़क पर ट्रक रोककर उसके सामने नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन पर दफ़ा 183 यानी कि अवामी रास्ते में ख़तरा पैदा करना, सरकारी मुलाजिम के काम में रखनाअंदाज़ी और ऐलान शुदा सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करना, इस तरह के एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लफ्ज़ों के जादूगर और उर्दू में कई शानदार कलाम लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का इंतकाल हो गया है। उर्दू के इस रोशन चिराग ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुनव्वर राना कई दिनों से बीमार थे। वो लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थे। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत ख़राब होने पर ICU में मुंतकिल कर दिया गया था। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़े और कमोबेश हर मुशायरे में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उर्दू दुनिया में ज़्यादातर मुशायरों की सदारत उन्हीं को सौंपी जाती थी। एक कामयाब शायर के साथ वो एक अच्छे नसर निगार भी थे। मुनव्वर राना जिन्होंने एक ऐसे वक्त में मुशायरों के मंच से माँ के हवाले से गज़ल कहना शुरू किया था जिस वक्त गज़ल में महबूबा की तारीफ़ उसके लबों और रुखसार पर ही गज़लें कही जाती थी। मुनव्वर राना कई मौक़े पर बहस और सुर्खियों का हिस्सा भी बने हैं। 2015 में दादरी नोएडा यूपी में हुजूमी तशद्दुद में अखलाक के कत्ल के बाद उन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था। वहीं मई 2014 में उस वक्त की SP हुकूमत ने राना को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया था, ताहम उन्होंने अकेडमी में बदनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफ़ा भी दे दिया था। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने बताया कि उनको उनकी वसीयत के मुताबिक पीर को यानी कि आज लखनऊ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यूपी के ज़िला बरेली में पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान 3 गौरक्षकों को गाय ज़बह करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि करनी सेना के ज़िला सदर ठाकुर राहुल सिंह और उनका साथी इस मामले में मफरूर बताए जा रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। दरअसल ये गैंग मुबैना तौर पर खुद गाय ज़बह करता था और फिर दूसरे लोगों को फंसा कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता था, फिर उन्हीं से तावान वसूल करता था। BSP सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ BJP को भी निशाना बनाया है।
इस दौरान उन्होंने EVM और इंडिया ब्लॉक का भी जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी BSP पूरे मुल्क में अकेले ही लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी की हिमायत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मायावती ने कहा कि इत्तेहाद बनाने से पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है और हमारा वोट फीसद भी कम होता है और दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होता है, इसलिए ज़्यादातर पार्टियां BSP के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। मोहब्बत के फ़रोग़, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और मणिपुर में क़याम अमन के अज़्म के साथ राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ इतवार को इम्फाल से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ किया था। इस मौके पर मुनाक़िदा प्रोग्राम में उन्होंने तशद्दुद ज़दा मणिपुर के आवाम को ढारस बंधाई कि कांग्रेस उनके दर्द को समझती है और रियासत में क़याम अमन के लिए संजीदा है। उसके साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, हुक्मरान जमात BJP और उसकी सियासी नज़र साज RSS को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी नज़र में शायद मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा न हो। राहुल गांधी ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि वो गुज़िश्ता यात्रा की तरह ये यात्रा पैदल नहीं कर सकते क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात की वजह से वक्त काफ़ी कम है। ताहम वो गुज़िश्ता भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनके मसाइल सुनने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।